Now in geometry we'll start with the first chapter, similarity chapter. Textbook है सब लोग के पास. Okay, now what is similarity? Now any two shapes are same but they are differ in their size. ठीक है. ट्राइंगल है तो दोनों शेप ट्राइंगल में, बट उसका साइज क्या है, डिफरेंट है. सपोज दिस इज ट्राइंगल एबीसी एंड दिस इज ट्राइंगल पीक्यूआर. शेप दोनों ट्राइंगल का है बट देयर साइज आर डिफरेंट. इसका फर्स्ट एबीसी का एरिया विल बी ग्रेटर देन ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया. ठीक है. सो टू फिगर्स आर इन सेम शेप बट आर डिफरेंट इन साइज. साइज डिफरेंट रहेगा. ठीक है. देन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर. अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हम लोग को सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे है, which you have already know. Area of triangle. Now what is area of triangle? Half into base into height. Okay, area of triangle is equals to half into base into height. You can write the name of the chapter and write formula. Area of triangle is half into base into height. Okay, so now based on this formula, we'll start with the first exercise. We have different theorems and formula, but we'll see from the next exercise. Okay, second exercise is सब theorems and different formula hai. First exercise is based on this formula. Area of triangle is equals to half into base into height. So we'll start with the first exercise. Okay, now first, base of a triangle is 9. First sum. Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of area of these triangle. दो ट्राइंगल है. ठीक है. दो ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का बेस हाइट दिया है, दूसरे ट्राइंगल का बेस हाइट दिया है. So there are two triangles, triangle 1 and triangle 2. Base of triangle is 9, मतलब B1 base of triangle is 9 and height is 5. वही triangle का height क्या है? Height is equals to 5. Correct. Base of triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle, दूसरे triangle का base बोला है. So base 2. Base of another triangle is 10 and height is 6. Okay, so there are two triangles. फर्स्ट ट्राइंगल का, ये फर्स्ट ट्राइंगल का दिया है. फर्स्ट ट्राइंगल का ये फर्स्ट ट्राइंगल का बेस एंड हाइट दिया है और ये सेकेंड ट्राइंगल का बेस एंड हाइट दिया है. ओके. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स. रेशियो मतलब अपॉन एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल, मतलब A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करना है. ठीक है. A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करना है. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, ये दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है. ये दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है. सो नाउ फॉर्मूला, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन एरिया ऑफ 2, सेम फॉर्मूला हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2. now half will get cancelled, so base 1 into height 1 upon
base 2 into height 2. Now what is B1? Now we will substitute B1. B1 is 9 here. B1 is 9, correct? So substitute 9 into H1. H1 is 5. H1 is 5. So substitute 5 upon B2. What is B2? Reply. What is B2? 10. Correct. Correct. Darshan, correct. See, it is given. B2 is 10. So we'll substitute 10 into H2 is 6. Now reduce. 5 2s are 10. 3 3s are 9. 3 2s are 6. So answer is 3 by 4. So what is your final answer? Final answer is A1 upon A2 is equals to 3 by 4. Understood? समझा? Start sum from here. First start करो. Write given. Given is what? B1, H1, B2, H2. We have to find A1 upon A2. Then write formula. Chalo, now second sum. Diagram is given. In the figure, BC is perpendicular to AB. तो ये proper है. BC is perpendicular to AB. BC ये दिया है. This BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB. This AD is perpendicular to AB. ठीक है, दिखा है. This BC and AB perpendicular है और ये AB और AD perpendicular है. ठीक है, 90 degree means it is perpendicular. Now, Ma'am, हाँ, Miss, I've got this doubt in the first sum. yes, When you get like 9 into 5 upon 10 into 6, if you multiply it, you get 45 upon 60. correct. And in 15 table, 15 threes are 45 and 15 fours. Yes, you can reduce like that way also. You can multiply and then you can reduce. Okay, thank you, That ma'am. was the dis- Okay, now diagram is given. AB is perpendicular to BC, AD is perpendicular to AB. It is given and BC is equals to given. BC is equals to 4. BC is equals to 4 and AD is equals to 8. AD is equals to 8. Okay, find means we have to find area of triangle ABC upon area of triangle ADB.
correct? See, while writing, you have to write in a proper form. Like first you have to draw the diagram, then write whatever is given. BC is equals to 4, AD is equals to 8. Then write to find. So to find, what we have to find? Area of triangle ABC upon area of triangle ADB. मतलब दोनों triangle का ratio find out करना है. ठीक है, area है, so we'll use same formula. So then solution. So now solution. What we have to find? Area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equals to same formula for area. So half into. Now ABC का base क्या रहेगा? ABC का base ABC में ये बेस रहेगा AB. ठीक है, जो मैंने डार्क हाईलाइट किया है, AB बेस रहेगा, करेक्ट. एंड हाइट क्या रहेगा? BC विल बी हाइट. दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस, करेक्ट. So half into base is AB into height is BC. So half into base into height upon ADB. Now in triangle ADB. बेस क्या रहेगा ABD में? Yes, अंशिका correct. दर्शन correct. What is base in triangle ABD? ABD का बेस क्या रहेगा? This is base AB. ओके, ये ABD ट्राइंगल में ग्रीन से जो है AB बेस रहेगा और परपेंडिकुलर है ऐसे, मतलब हाइट विल बी AD, करेक्ट. सो हाफ इनटू ABD का बेस इज AB and height is AD. Now you can reduce. Half reduce, AB reduce. So answer is BC upon AD. Now what is BC? What we can substitute in BC? Darshan correct. Chalo, I want reply from all. You can unmute yourself or you can chat. Anshika correct. No, Rishika, I want BC. How much BC? Pranit, Tanvi, reply karo. Divisha, Akash. Yes, Rishika. Now it is correct. दर्शन का है, अंशिका करेक्ट है. चलो, तन्वी, ज्योतिका, दिविशा, what is BC? What we can substitute in BC? Tanvi correct, Jyotika correct. So BC is 4 upon. What is AD?
AD is 8. It is given. See, you can see here. Given में दिया है यहाँ पे. Okay, BC is equals to 4 and AD is equals to 8. Now you can reduce. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. So answer is 1/2. Okay, third sum. In the following figure, PS is perpendicular to RQ. Okay, diagram देखो when I am reading the question, see in the diagram. PS is perpendicular to RQ. QT is perpendicular to PR. QT is perpendicular to PR. Segment PR. If RQ is equals to 6, if RQ is equals to 6, PS is equals to 6, and PR is equals to 12. PR is equals to 12. Then find QT. Okay, now what is given? Write given terms. RQ is equals to 6. PS is equals to 6. PR is equals to 12. Find QT. To find QT. Okay. ठीक है. अभी इसमें रेशो के टर्म में तो कुछ नहीं दिख रहा है. लास्ट दोनों सम में रेशो था, अपॉन में था, मतलब रेशो था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे, रेड्यूस होता तो वो रेड्यूस करते थे, सम हो जाता. हियर वी हैव टू फाइंड QT. ठीक है, रेशो नहीं है. अभी ये जो PQR ट्राइंगल है, PQR ट्राइंगल है. मैम वन क्वेश्चन. एनी डाउट आकाश? मैम ये ट्रायंगल है, तो मैम इसमें एंगल क्यों नहीं दिया है? इसमें सेगमेंट ही क्यों दिया है? नहीं सेगमेंट दिया है. PS. एंगल का मेजर नहीं दिया है, सिर्फ साइड्स के ही मेजर दिए है. नहीं दिया ही नहीं है तो फिर ठीक है ना, वैसे भी वी डोंट नीड एंगल का मेजरमेंट. ठीक है, सिर्फ सब साइड के मेजरमेंट ही दिए. RQ 6 दिया है, साइड है ये भी. PS इज ऑल्सो साइड 6, PR इज ऑल्सो साइड, इट इज 12, एंड वी हैव टू फाइंड साइड ओनली. QT फाइंड आउट करना है. ओके, मेजर ऑफ एंगल्स आर नॉट गिवन. थैंक यू. Okay, now this is triangle PQR, right? Now अभी ये PQR जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, वो ट्राइंगल PQR का there are two base. ये RQ base है, ठीक है. When height is PS, जब भी ये हाइट PS है, ठीक है, जो पिंक से मैं मार्क कर रही हूँ, हाइट PS है, तो बेस क्या है? RQ. ठीक है, ये ट्राइंगल का हाइट क्या रहेगा? PS रहेगा, और RQ उसका क्या है? बेस है. ठीक है, समझा? ये ग्रीन जो ट्राइंगल मैंने किया है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल को 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स रहते हैं, राइट? सो अभी ये जो ट्राइंगल PQR है, उसको क्या है? एक बेस है RQ, ये RQ उसका बेस है व्हेन हाइट इज PS. ओके, हाइट इज PS, ये ट्राइंगल का हाइट है, एंड बेस इज RQ. तो एक फॉर्मूला हो जाएगा. नाउ सॉल्यूशन. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू
Now what is base? Base is RQ, correct? ये पिंक कलर का वो बेस है उसका, एंड हाइट इज PS, ठीक है? नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट हाफ इनटू व्हाट इज RQ? RQ is 6, it is given, जो मैंने अंडरलाइन किया है. RQ is 6 and PS is 6. Now we can reduce 2 3s are 6. So 6 3s are 18. 18 is area of triangle PQR. Square units. एरिया है तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है? बट हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड ही नहीं करना है, हम लोग को QT फाइंड आउट करना है, ठीक है? नाउ वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. तो अभी वापस से डायग्राम में देखो. अभी ये सेम ट्राइंगल PQR का और एक बेस है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, ये पर्पल जो मैंने किया है. तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट फॉर ट्राइंगल PQR. अभी ये सिर्फ पर्पल को देखो, ये PQR, ये जो ऐसे ट्राइंगल है PQR जो ट्राइंगल है, ये उसका हाइट रहेगा एंड दिस इज बेस, करेक्ट? मतलब सेम ट्राइंगल का दो बेस और दो हाइट है, बिकॉज परपेंडिकुलर दोनों में है ना. क्लियर? तो ये PR भी PQR का बेस रहेगा और QT उसका हाइट रहेगा. वी हैव टू फाइंड QT. सो सेम फॉर्मूला and same triangle. Area of triangle PQR half into base into height. But now what will be the base? अभी base क्या consider करेंगे? Yes दर्शन, correct. फर्स्ट RQ और PS हो गया बेस. अभी क्या कंसिडर करेंगे? आकाश, करेक्ट. अभी ये PR को बेस कंसिडर करेंगे, ये PR, ठीक है? एंड हाइट QT. So now base is PR and height is QT. Now what is area of triangle PQR? We got area of triangle PQR 18 square root here. ठीक है, ये समझा जिधर मैंने राइट मार्क किया. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 18 स्क्वायर यूनिट्स. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट 18 इज इक्वल्स टू हाफ. नाउ व्हाट इज PR? PR का वैल्यू दिया है, व्हाट इज PR? 12. It is given PR is 12, so we can substitute 12 into, we have to find QT. Now cross multiplication, or you can reduce here. 2 6 are 12. So 18 is equals to 6 into QT. So now we can divide 18 by 6 is equals to QT. 6 3s are 18. So QT is equals to 3.
क्लियर? पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ वन बेस एंड हाइट, फिर एरिया मिल गया, सेम ट्राइंगल का दूसरा बेस और हाइट कंसिडर करके हाइट QT फाइंड आउट किया. क्लियर? Miss, यस. Miss, can we like also do it like 6 into 6, which is equal to 36, 36 upon 12, which Upon is 2. 12 upon 2. Yeah, 6 are here, no? Yeah, but if you do 36 upon 12, 12 threes are 36. See here now. Hmm. Right here you are telling, right? 6 are 36 upon 2. Upon 12. 12, 12. Why 12? It is 2, no? 2. Okay. 1 by 2 hai, so it is 2. So 6 are 36 upon 2, which is equals to 18. Okay, miss. Right question. Base of a triangle. Base of a triangle is 3 and height is 6. Base of a triangle is 3 and height is 6. Base of another triangle. Base of another triangle five and height is 4. Base of another triangle is 5 and height is 4. Find the ratio of area of these triangles. Find the ratio of area of these triangles. ट्राई करो, सम हो जाएगा तो डन भेजो. Ma'am, height is What, Akash? height. Height is 4. Last one is 4. This is 3, this is 6, this is 5 and this is 4. Okay, Rishika done. Anshika, yes, or
Height of first triangle is 6 and another triangle is 4, Anshika. Chalo, done. Darshan, done. Rishika, done. आंसर सेंड करो दर्शन, ऋषिका. ग्रुप में मत करना. दर्शन रेड्यूस कर. ऋषिका करेक्ट. Yes, correct, Darshan. Chalo, what about others? Anshika, Tanvi, Pranit, Devisha, Jyotika. It is very easy sum. Should not take more than 2 minutes. मैम हाँ आकाश. मैम आप मेरा मैसेज आपको जा रहा नहीं है क्या? No, I'm not getting your message. किसमें ग्रुप में किया है? नहीं मैंने आपको ये प्राइवेटली की है. नहीं, नहीं आ रहा है. चैट बहुत सारे बॉक्स मैसेज. ब्लैंक है, एकदम एम्प्टी है. ज्योतिका, दिविशा, मिला आंसर? आपको मैसेज सेंड किया है. मुझे नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आया तुम लोग को. मैम मैंने भी सेंड किया था. मुझे सिर्फ दर्शन और ऋषिका का ही मिल रहा है. ज्योतिका क्या आ रहा है आंसर? 9/10. एंड आकाश? 9/2. हाउ टू? 210. चल, अभी मुझे पता कैसे होगा सॉल्व. वी हैव टू फाइंड A1/A2. मैम हाँ आकाश. नाउ मैं पहले फॉर्मूला लिखना है. हाफ ऑफ इंटू बी इंटू एच B1 2 H1. अपॉन. हाफ इंटू B2 इंटू H2. करेक्ट. Then 3 into 6 हाफ upon ऑफ विल 5 गेट into 4. कैंसिल. Yes, ma'am. Half will get cancelled. नाउ B1 3 into 6 upon 5 into 4. करेक्ट. Ma'am, then multiply. Then answer come 18 upon 20. करेक्ट. तो अभी reduce करोगे. 2 9s are 18 and 2 10s are 20. So answer is 10. Sorry. 9/10. Okay, ma'am. Okay. Okay, fourth sum diagram is given. In the following figure, AP is perpendicular to BC. AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. Parallel lines पता है ना, 9th standard में टॉपिक था.
which are parallel lines, lines which do not intersect each other. Correct? Lines which do not intersect each other are parallel line. फिर parallel line के concepts थे. If two lines are parallel, then their corresponding angles are equal. If two lines are parallel, then their alternate angles are equal. And if two lines are parallel, then sum of the interior angle is 180 degree. Remember first or second chapter था 9th में. Okay. So now here AD is parallel to BC. Fine. Given में क्या दिया यहाँ पे? AD is parallel to BC. Then find area of triangle. मैम AP परपेंडिकुलर टू BC भी दिए है ना, हाँ वो भी लिख सकते हो यहाँ मतलब पे. कौन सा भी एक लिख सकते हैं? नहीं जो भी गिवन है वो सब लिखो चलेगा. लेकिन अगर कोई वैल्यूज दिया है ना, इफ BC इज इक्वल्स टू 2, BC इज इक्वल्स टू 3, तो वो ही लिखो वैल्यूज अगर दिया है तो. और अगर ऐसे वैल्यूज नहीं है, सिर्फ बोला AD इज पैरेलल टू BC एंड इट इज परपेंडिकुलर टू BC, तो दोनों लिखो. Find area of triangle ABC is to area of triangle BCD. ठीक है, ये फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एरो मार्क है जहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC and area of triangle BCD. BCD. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो फाइंड आउट करना है. अभी ध्यान में रखो ये कॉन्सेप्ट. दो लाइन पैरेलल रहेगा. ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है तो उसका हाइट क्या रहेगा? सेम रहेगा. यहां से मेजर करो, यहां से मेजर करो, यहां से मेजर करो, हाइट विल बी सेम. ठीक है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, अभी ये दोनों पैरेलल है तो कहीं से भी हाइट मेजर करो, हाइट सेम ही रहेगा. ठीक है, तुम लोग के होम का भी फ्लोरिंग और ये अपर कहीं से भी रूम में हाइट मेजर करो तो सेम ही रहेगा. ठीक है, बिकॉज दोनों पैरेलल है. सो सेम वे ये दोनों ट्राइंगल्स है. विच ट्राइंगल? ट्राइंगल BC. ये ट्राइंगल पर्पल से जो है वो ABC एंड ट्राइंगल BCD एरो है. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बिटवीन है. टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, therefore their height will be equal. करेक्ट? ये कॉन्सेप्ट समझा? अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसका हाइट सेम रहेगा. तो ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल के बिटवीन है. ABC ट्राइंगल एंड BCD ट्राइंगल, पर्पल कलर का ट्राइंगल और ग्रे कलर का ट्राइंगल, दैट टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सो देयर हाइट विल बी इक्वल. करेक्ट? और अभी ABC का बेस क्या रहेगा? ये ABC का बेस क्या रहेगा? यस दर्शन, करेक्ट.
नो तन्वी, हाउ एसी? ये सी बेस कैसे समझेगा? ये ए बी सी का ट्राइंगल है, राइट? ये ए बी सी का ट्राइंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर में ये जो बेस में रहता है, मतलब ये बेस रहेगा, ठीक है, और ये जो है वो हाइट रहता है। क्लियर? तो वैसे ही ये ट्राइंगल ए बी सी में ये परपेंडिकुलर है, तो बी सी बेस रहेगा, ठीक है, और हाइट तो दोनों ट्राइंगल का सेम रहेगा बिकॉज टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इतना क्लियर है? तो अभी कैसे होगा, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू मतलब अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू ए बी सी का बेस क्या रहेगा? बी सी, और दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम रहेगा, तो आई विल राइट एच अपॉन बी सी डी हाफ इनटू अभी बी सी डी, ये बी सी डी, ये ट्राइंगल बी सी डी, तो इसमें भी बेस बी सी रहेगा, ठीक है, ऐसा है ये ट्राइंगल बी सी डी, इसमें भी बेस बी सी रहेगा, करेक्ट? तो यहाँ पे भी क्या आएगा? बेस बी सी और हाइट सेम रहेगा दोनों का बिकॉज टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नाउ हाफ हाफ कट, बी सी कट, हाइट विल बी सेम, सो आंसर इज 1/1, मतलब आंसर क्या रहेगा? 1:1। बट तुम लोग को पहले टू फाइंड के बाद पहले स्टेटमेंट लिखना है। समझा? समझा बेस क्या है, हाइट क्या है, पहले इतना समझा? ओके दर्शन क्लियर, समझा सब लोग को? सम प्लीज डायग्राम में देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिविशा क्लियर, ऋषिका क्लियर, ओके। तन्वी क्लियर, आकाश okay. Draw the diagram, write given and to find. After that I will tell you statement that you have to write. Once you are done with till to find, then let me know. Draw diagram, write given and to find. Okay, so after to find, now write two triangles means solution में आएगा, अभी solution है यहाँ से, so from here it is solution, so write two triangles that is मतलब ऐसे लिखो, that is triangle ABC and triangle BCD, two triangles that is triangle ABC and triangle BCD lie between two parallel lines two triangles ABC and BCD lie between two parallel lines therefore their height will be same, therefore their height will be same.
Now you can start with the formula. अभी ये फॉर्मूला से स्टार्ट करो यहाँ से. मैम एक बार सेंटेंस फिर से रिपीट करो ना. Two triangles, that is triangle ABC and triangle BCD, lies between two parallel lines. Therefore, their height will be same. Chalo, fifth. In the figure, PQ is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. Then find the following ratios. First ratio is area of triangle PQB upon area of triangle PBC. Now, area of triangle PQB upon area of triangle PBC is equals to same formula half. Now PQB मतलब ये ट्राइंगल पे आ जाओ. PQB ये ट्राइंगल. चलो बेस कौन सा रहेगा? PQB जो ब्लू कलर का है उसका बेस क्या रहेगा? दिस इज परपेंडिकुलर. So what will be the base? Darshan correct, Rishika correct, Tanvi correct, no Anshika. Base पूछा है base. Akash correct. Say this is triangle PBQ. This is perpendicular. ये साइड perpendicular है मतलब ये भी. तो ये बेस रहेगा और ये हाइट रहेगा. ठीक है. So half into base is BQ and height is PQ. ठीक है. ये हाइट रहेगा और ये base upon. Now in triangle PBC. Now where is PBC? PBC triangle. उसमें ये perpendicular है. तो अभी बेस क्या रहेगा? ऐसे है पूरा ट्राइंगल. ऐसे. करेक्ट दिविशा. नाउ ग्रीन कलर का देखो पीबीसी में. दर्शन करेक्ट. नो क्यूसी ऋषिका. फुल ट्राइंगल है भी. अंशिका करेक्ट. तन्वी करेक्ट. ऋषिका करेक्ट. Correct. Now PBC means this whole triangle PBC. So BC रहेगा base. So half into BC into. Now what is height in PBC? PBC में height क्या रहेगा? ऋषिका करेक्ट. दर्शन पीबीसी में हाइट क्या रहेगा? सी ये पूरा ट्राइंगल है ना पीबीसी. नहीं पीडी वीडी नहीं आएगा. दिस इज पी बी सी और ये पी क्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर है. ये तो यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल को है. ठीक है. तो पी क्यू ही रहेगा ना. ये पी क्यू ही हाइट रहेगा. समझा? पीबीसी में ये बीसी बेस और ये PQ हाइट. PQ हाइट रहेगा. समझा? ये ग्रीन कलर का है वो देखो. सेपरेटली मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है. पीबीसी ये फुल ट्राइंगल है
और PQ उसको परपेंडिकुलर है. सो BC अगर बेस है तो PQ क्या रहेगा, हाइट रहेगा. सो इनटू PQ. Now you can reduce half reduce PQ cut. So answer is BQ upon BC. समझा? Now we have to find second ratio. Area of triangle PBC upon area of triangle ABC. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. Now Rishika, you can unmute yourself. PBC मतलब ये बेस रहेगा एंड हाइट करेक्ट PQ अपॉन नाउ ABC मतलब बेटा ABC मतलब ये ट्राइंगल, पिंक कलर का ट्राइंगल ABC. नाउ तन्वी, नाउ यू कैन म्यूट निशिका. तन्वी, ABC में बेस क्या रहेगा अभी? अनम्यूट कर तन्वी. ओके, तन्वी ने रिप्लाई किया है हाफ इनटू BC. एंड व्हाट विल बी द हाइट तन्वी इन ABC? ABC ऐसे पूरा ट्राइंगल है. करेक्ट तन्वी, वेरी गुड. ABC एंड ऐसे परपेंडिकुलर है, D इज परपेंडिकुलर. सो साइड में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, देखना जरा मूव करके. BC बेस है एंड AD हाइट. सो हाइट इज AD. Now you can reduce, half will get cancelled, BC will get cancelled. So PQ upon AD will be your answer. 2 you can solve now. Third and fourth will be homework. Okay, fifth का third and fourth will be homework. अभी इतना complete करो. Don't left. Lecture complete नहीं हुआ है, पहले इतना complete करो. मैम Yes. फोर्थ वन एक्सप्लेन करो ना. फोर्थ वन ADC और PQC का. ADC का बेस क्या रहेगा? DC. अच्छा, कट नहीं हो रहा है इसके लिए पूछ रहा है क्या तू? यस. हाँ भाई, नहीं हो रहा है कट, करेक्ट है. क्या आ रहा है तुझे आंसर फोर्थ का? ADC का बेस DC और हाइट AD और करेक्ट, PQC DC का into बेस AD. QC और हाइट PQ. करेक्ट. सो आंसर इज DC into AD अपॉन QC into PQ. कट नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलेगा. ओके, थैंक यू. डन. ये दोनों हो गया. थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क में करो इसका. थर्ड एंड फोर्थ विल बी होमवर्क. डन. ओके, सबका हो गया है ना? सो आई विल स्टॉप शेयरिंग. ओके, सो विल स्टॉप द लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. लेफ्ट हो सकते हो. बाय बाय. बाय.